Good evening. Can you all hear me fine? सबको मेरी आवाज आ रही है ठीक से? Great. All right. Great. Okay, friends. So, मेरे ख्याल से आप सभी लास्ट क्लास में भी थे ना, मेंटरशिप वाले? ओके, आप नहीं थे. ओके, फाइन. ओके, कार्तिक. ओके, फाइन. So, friends, so how was the market today? कार्तिक, आपका स्टेटस नहीं लिया था. Did you do any trades today? I have sold Vedanta with position is still there. Okay, so what happened with it? I mean, it didn't move much in the sense I've sold it around 229.95, Okay. and I had kept a 2% target, but Hmm. never came till that. So I'm still holding that. Still And holding. yeah, but, How no, can I you have hold a sold it short in position? cash. No, somebody had a delivery, so I've sold that. It is not in my account, but I've sold somebody's uh, in somebody's account. Okay, it's a delivery based selling. Delivery based selling, yeah. So maybe I'll buy that later. You cannot buy a short position. No. I'm saying somebody had the stocks of Vedanta in his account. Okay, So okay. I have kind of. You guys So I just have got rid of it. today. Okay. Okay. So one share he has sold, Hmm. so which I will buy later. I'm holding that position. Okay, short positions you cannot hold in cash market. Okay. So it is No, a I mean delivery based selling. You just got rid of one quantity of whatever you were holding. Okay. correct. Okay. So fine. Ranjan, any trades? Yes, sir. I took a short position in Tata Ranjan, you'll Steel. have to come closer to the mic. Your voice is not audible. Okay. Is it fine now? It's a little better. Yeah. Say. Okay. I took a short position in Tata Steel, Okay. and I exited at cost to cost. Okay. I had kept a 2% target, but it didn't went till that. Okay. Fine. So I exited at 245 at cost to cost. Okay. Right. Govindji, anything that you would have done? Any trades? Okay. किस में था? HDFC. HDFC buy? Okay. क्या हुआ दोनों में? Okay. Okay. Fine.
सर एक स्लाइड शेयर करना था on the progression of how the trade happened. So if आपको दे time दूं? permits. आपको कंट्रोल दे हाँ रहा हूँ। ठीक हाँ, हाँ ठीक। okay. कार्तिक, राइट? Yeah. सर ये स्क्रीनशॉट है सवेरे जब वो ट्रेड लिया था वेदांता का। ओके, ये ये जो 5 व्हाइट मिनट चार्ट लाइन है ना? है ये अपना ऊपर का जो ये 5 मिनट चार्ट है सर। ये शेर खान से लिया है तो ठीक है। ये ऊपर ये 5 मिनट दिख रहा है ना यहाँ पे 5 इंडिकेट्स 5 मिनट चार्ट। राइट। वेदांता इट्स अराउंड दिस टाइम। तो ये यहाँ पे एक इंक्रीजिंग ट्रेंड था। ओके, ये बॉक्स जो है ये बॉक्स इज दैट जोन, रेड जोन, then इसका वॉल्यूम वाज टेकन ओवर बाय दिस कैंडल। वॉल्यूम कंफर्मेशन कम्स हियर and then I have taken the sell here. So I mean that sell, that whatever we were talking about was here. ओके। So is this the right methodology or हाँ, आपको क्या करना होगा? कार्तिक, मुझे माउस का कंट्रोल देंगे आप? हाँ ओके, हाँ सर। राइट। वो स्क्रीन ओपन करना पड़ेगा आपको। कौन सा स्क्रीन? स्क्रीन नहीं दिख रहा है आपका। मैंने अब आ गया। ओके, गुड। तो कार्तिक, ड्राइंग इज फाइन। तो यहाँ पे जो आपको ये पैटर्न दिखा था, ठीक है, आप अगर देखो तो यहाँ पे जो वॉल्यूम कॉन्फर्मेशन आया था ना आपको इस वाली जगह में, हाँ जो हाँ कि ये कैंडल था, राइट? तो हाँ आपको इमीडिएटली जब यहाँ पे ये कैंडल हिट किया था इसको, इस वाले लाइन को, जब ये वाला पैटर्न बना था, इस वाली जगह पे जब हिट किया था, तो आपको एक चीज और ध्यान में आ जाना चाहिए उस समय, यहाँ पे एक ग्रीन पैटर्न बन गया, ओके ठीक है? तो अब आपका सेल लोकेशन ये वाला ना हो करके ये ग्रीन का टॉप होगा, ओके ठीक है? तो वो जितना भी है, मतलब इसमें तो खैर इतना मैटर नहीं करता, पर हो सकता है कि वो प्राइस यहाँ कहीं पे होता, ठीक है? तो आप ठीक है। यहाँ से हाँ, उस सेल को ले सकते थे, ओके ठीक है? तो जब ये ये वाला जो लाइन है इस वाली जगह पे, जब ये वाला जोन जब टच किया था दोबारा, तो यहाँ पे आप सेल कर सकते थे, कोई इशू नहीं है, ओके ठीक है? अच्छा, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप अगर देखोगे कि आज मैंने किसी भी मेटल को नहीं बेचा, ओके if you will notice, आज I did not trade in metals, right? या Okay, and there is a reason कि मैंने मेटल्स को क्यों नहीं बेचा आज। मुझे ये बताइए, कल का टॉप लूजर कौन था? कल का टॉप यूजर वाज yesterday's Coal India. कोल इंडिया? Sorry. It was SBI. SBI?
महिंद्रा एंड महिंद्रा, सॉरी महिंद्रा, ठीक है, ऑटो सेक्टर महिंद्रा था, महिंद्रा। ठीक है। अब देखिए किसी भी सेक्टोरल स्टॉक में मूवमेंट होने के लिए उस स्टॉक में या फिर उस सेक्टर में कुछ एक स्पेशल कुछ होना चाहिए उस दिन पे, ठीक है। अब से फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने आज किसी भी मेटल को ट्रेड नहीं किया, तो इसी तरीके से और भी ट्रेडर्स रहे होंगे ना जो यही काम करते हैं। अब जैसे मैं तो आई डोंट डू एनी अदर जॉब, आई डू ओनली दिस, राइट। सो मेरी तरह जो लोग हैं जो यही काम करते हैं वो भी कुछ ऐसा ही सोच रहे होंगे, ओके। तो ऐसा हमें कैसे पता लगता है कि कौन से दिन पे जिस स्टॉक को मैं ट्रेड करना चाहता हूँ उसको मैं ट्रेड कर सकता हूँ, ठीक है। और इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा, बिकॉज दिस विल हेल्प यू टू एंटर अ स्टॉक ऑन द राइट डे, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब मान लीजिए कि मेटल्स को बेचना है, ठीक है। तो प्राइमरली मेटल्स में हमारा जो टारगेट है वो वेदांता, हिंडाल्को, टाटा स्टील, कोल इंडिया, मोटा मोटी ये 4 स्टॉक्स, ठीक है। अब अगर मैं देखूं आज, तो येस्टरडे कोई भी मेटल का स्टॉक टॉप लूजर में क्लोज नहीं हुआ, पॉइंट नंबर 1, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 इज कि आज कोई भी मेटल का स्टॉक ना ही प्री ओपन के टॉप पे आया, नंबर 1 पे आया, ना ही नंबर 50 पे आया, यस और नो। ठीक है। तीसरी चीज, इनमें से किसी भी स्टॉक में ना ही गैप डाउन हुआ और ना ही गैप अप हुआ। गैप डाउन होने का मतलब है कि कल के लो के नीचे खुलना, गैप अप का मतलब होता है कल के हाई के ऊपर खुलना, ठीक है। जैसे आप ट्रेंडिंग ओपनिंग देखते हो ना कि हाई के ऊपर खुल जाए या ट्रेंडिंग ओपनिंग लो के नीचे खुल जाए, ठीक है, ऐसा भी नहीं हुआ, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमेशा इस चीज को ध्यान रखना है हमें कि जिस भी सेक्टर में मुझे ट्रेड करना है या जिस भी स्टॉक में मुझे ट्रेड करना है, ठीक है, तो वो स्टॉक वो सेक्टर जो है वो थोड़ा सा लाइमलाइट में होना चाहिए उस दिन पे, मतलब एक इंटरेस्ट होना चाहिए ट्रेडर्स का, ठीक है। क्योंकि हम स्पेकुलेटिव बिजनेस में है ना, तो उसमें एक इंटरेस्ट पैदा होने के लिए उसके जो सिम्टम्स होते हैं, उस इंटरेस्ट के जो सिम्टम्स होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं कि टॉप गेनर लूजर में उस सेक्टर के स्टॉक का होना, ठीक है। या फिर जब मॉर्निंग में मार्केट ओपन हो रहा है तो प्री ओपन में ही नंबर 1 पे मेटल के स्टॉक का होना या नंबर 50 पे मेटल के स्टॉक का होना, या फिर उन मेटल के स्टॉक में से कोई एक मेटल का स्टॉक गैप डाउन ओपन हो जाता या फिर गैप अप ओपन हो जाता, ठीक है। ये सिम्टम्स होते हैं इंटरेस्ट के, ओके। अगर ऐसे सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं तो फिर मुश्किल है, मतलब कि उसमें ट्रेड अगर हम लेंगे भी तो उसमें मूवमेंट पूरा आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। हालांकि कोई ऐसा इट इज नॉट कास्टेड इन स्टोन की मूवमेंट आ ही जाएगा, पर majority of the cases if there is an interest the movement should come, ठीक है। ये चीज क्लियर है, ओके। कार्तिक एक काम करो, आपका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, खुला है? कार्तिक कैन यू हियर मी? Yeah, I'm opening the platform. अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, नहीं मुझे लगा कि शायद आवाज नहीं है।
So sharing the screen. हाँ, अभी काम करो, मुझे ये बताओ कि ट्यूसडे को मैंने एक मेटल का स्टॉक ट्रेड किया था, वो कौन सा था? Tuesday was 19th. उस दिन मैंने हिंडाल्को हिंडाल्को को और वेदांता को दोनों को शॉर्ट किया था, ठीक है। अब एक बार चार्ट खोलो उस दिन का, दोनों का खोलो, मैं बताता हूँ कि मैंने शॉर्ट क्यों किया। हालांकि हमको ये पता था कि मेटल्स आर वीक, वी वांट टू गो शॉर्ट, बट उसी दिन पे क्यों किया शॉर्ट, तो वो मैं दिखा देता हूँ अभी आपको, ठीक है। ये कौन सा वीडीएल है ना, वीडीएल ट्यूसडे पे जाओ, मंडे और ट्यूसडे दिखना चाहिए आजू बाजू में। ठीक है, ये दिख रहा है अभी अपने को। ये थोड़ा सा छोटा करो तो वो मंडे का पूरा दिन दिख जाएगा, और ये डेटा बॉक्स थोड़ा सा ऊपर कर दोगे तो ठीक से दिख जाएगा। राइट, हाँ, थोड़ा सा कम कर दो, थोड़ा सा कॉम्प्रेस कर दो इसको, तो रिड्यूस कर दोगे तो मंडे ट्यूसडे दोनों दिखेंगे हमें। हाँ ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। ये मंडे ट्यूसडे। हाँ, तो देखो मंडे को वेदांता में अगर वैसे आप देखेंगे तो ऑन ट्यूसडे देयर वाज अ गैप डाउन ओपनिंग, ठीक है। दूसरा सिम्टम क्या था उस दिन पे, ये था कि उससे एक दिन पहले हिंडाल्को क्लोज्ड एज नंबर 50। अगर मंडे का टॉप लूजर देखोगे आप तो हिंडाल्को वाज अ टॉप लूजर, ठीक है। दूसरा चीज क्या था, ट्यूसडे को क्या हुआ था वेदांता के साथ, वेदांता वाज अ प्री ओपन नंबर 50 स्टॉक, करेक्ट। ठीक है। तो इस वजह से मैंने वेदांता को ट्रेड कर दिया उस दिन ट्यूसडे पे, क्योंकि ऐसा देख के लग रहा था कि देयर इज इंटरेस्ट विद द ट्रेडर्स टू ट्रेड इन वेदांता, ठीक है। हिंडाल को ओपन करो, सर और एक पूछना था, आप ऐसे क्यों नहीं ओपन करते हो जीरो दाम में? आप हमेशा वो यहाँ जाते हो, ऐड करते हो, फिर ओपन करते हो। वो मुझे 4 साल हो गया वैसे ही ओपन करते हुए जब से मैंने उनका अच्छा, कोई अकाउंट और खोला मैं टेक्निकली बहुत वीक आदमी हूँ। जस्ट क्यूरियस, हाँ जस्ट क्यूरियस, तो इसलिए पूछा। हाँ, नहीं नहीं, मैं वैसे भी टेक्निकली बहुत क्रिपल्ड और हैंडीकैप्ड हूँ मेरे को जो चीज एक बार आ जाता है मैं उसी को यूज करता रहता हूँ ओके, तो अब हिंडाल्को को मैंने इस जहाँ दिन पे इसलिए टेक्निकली ट्रेड किया स्ट्रांग था। होना चाहिए, फिर वहाँ। हाँ जहाँ पे आप टेक्निकली स्ट्रांग होना चाहिए, आप वहाँ हो। नहीं नहीं यार, आई हैव before taking all this as a career, I was actually like my last role was a deputy director of infrastructure, IT infrastructure projects. Okay, so most of my life I have lived outside India. तो उस दौरान सब जो हाई फाई जो इंजीनियर्स होते हैं ना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, तो दे यूज्ड टू बी वर्किंग विद मी। तो मैं हमेशा ही उन्हीं पे निर्भर रहा करता था फॉर ऑल माय टेक्निकल नीड्स। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक्सेप्ट फॉर टॉकिंग विद द क्लाइंट्स, आई हैड नो टेक्निकल स्किल्स व्हेन आई वाज डूइंग माय जॉब ओके, तो देखिए अब हिंडाल्को को ट्यूसडे को मैंने ट्रेड किया, राइट। हिंडाल्को को ट्यूसडे को मैंने इसलिए ट्रेड किया
क्योंकि मंडे को अगर इफ यू रिमेम्बर हिंडाल्को क्लोज्ड एज नंबर 50। क्या टॉप लूजर था? टॉप लूजर था उस दिन, ठीक है। और दूसरा क्या था कि टॉप लूजर भी था और क्या बोलते हैं ये भी था, मंडे को गैप डाउन क्लोज होके हाई वॉलेटाइल भी था। आप देखो हाई वॉलेटाइल था। हाई वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है कि गैप सस्टेन्ड था। फ्राइडे का गैप देखो और मंडे का गैप देखो, वो सस्टेन्ड गैप था। ये तो ना। हाँ राइट। अब मैंने हिंडाल्को को वेडनेसडे को भी ट्रेड किया था, ठीक है। वेडनेसडे को ट्रेड क्यों किया था मैंने हिंडाल्को को? वो इसलिए किया था क्योंकि ट्यूसडे को आप देखो कि सस्टेन्ड गैप होने के बाद, ओके, ये जो मंडे को एक सस्टेन्ड गैप डेवलप हुआ था, उसके बाद ट्यूसडे का जो क्लोजिंग था वो मंडे के लो के नीचे था, ठीक है। तो इस वजह से मैंने ट्रेड कर दिया था क्योंकि इसमें इंटरेस्ट दिख रहा है मुझे, ओके। नाउ इफ यू रिमेम्बर वेडनेसडे सॉरी थर्सडे को मैंने टाटा स्टील ट्रेड किया था। उस दिन मैंने ना हिंडाल्को किया ना वेदांता किया, उस दिन मैंने टाटा स्टील ट्रेड किया। टाटा स्टील का चार्ट खोलो, मैं दिखाता हूँ आपको। ओके ये थर्सडे है, ये थर्सडे वाला थोड़ा सा एक्सपैंड करो हल्का सा। अब थर्सडे को एक चीज देखो, क्या टाटा स्टील का ओपनिंग वेडनेसडे के हाई के ऊपर है? गैप अप ओपनिंग है, थोड़ा सा बड़ा कर लो दिखेगा। थर्सडे का ओपनिंग, थर्सडे आपका माउस इस समय वेडनेसडे पे रखा हुआ है। थर्सडे वाज 20। ये रहा ना। हाँ, क्या ये वेडनेसडे के हाई के गैप ऊपर अप ओपनिंग हुआ है? ओपन। गैपनिंग हुआ है, गैप अप हुआ है, गैप क्या अप हुआ है ना? ये हाई था? हाँ, हाई के ऊपर ओपन हाँ हुआ है यहाँ ना, ओपन था। ठीक है। राइट। तो गैप अप ओपनिंग था, तो इसने मुझे सिम्टम दिया कि हाँ आज शायद लोग जो है वो टाटा स्टील को ट्रेड करना चाहेंगे, ठीक है। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं, ये कॉमन सिम्टम्स हैं, ये रिपीट होंगे, ठीक है। Here also it opened. I mean the next day, right? Today also it actually opened. नहीं, पर आज कोई गैप अप गैप डाउन Today तो हुआ also it नहीं इसमें। opened. आज किसी में भी कुछ भी एक्टिविटी नहीं हुआ एक्चुअली। आज अगर देखो तो कल इस सेक्टर का कोई भी स्टॉक जो है वो वो नहीं हुआ, क्या बोलते हैं, कल टॉप लूजर में क्लोज नहीं हुआ या टॉप गेनर में क्लोज नहीं हुआ, सब मानते हो राइट। सो अट्रैक्शन नहीं था कोई, ओके। दूसरा क्या था कि आज जब सुबह ओपनिंग हुआ तो कोई भी प्री ओपन में भी मेटल का स्टॉक नहीं था, ठीक है। Okay. और तीसरा चीज था कि अगर इन सारे चार्ट्स को खोल के देखोगे कोल इंडिया समेत, इनमें से किसी में गैप अप या गैप डाउन भी नहीं हुआ, ना ही हाई के ऊपर क्लोजिंग ओपनिंग हुआ ना लो के नीचे ओपनिंग हुआ, समझे। इस वजह से आज मैंने कोई भी मेटल का स्टॉक ट्रेड नहीं किया, ओके। Okay. तो गाइज ये कुछ वेरी कॉमन सिम्टम्स हैं, ठीक है, जो कि आपको दिखेंगे
कि जिस सेक्टर में आप करना चाह रहे हो ट्रेड, वो कहीं ना कहीं एक स्पॉटलाइट सा होना चाहिए उसके ऊपर। अगर उसके ऊपर स्पॉटलाइट सा रहेगा तो आपको पता लगेगा कि हाँ, इसमें जो है स्पेक्युलेटर्स जो हैं, जो ट्रेडर्स हैं, वो आ रहे हैं ट्रेड करने के लिए। ठीक है, तो आज मुझे मेटल्स में कहीं पे भी दिखा नहीं है ऐसा। ठीक है, तो दैट वाज द रीजन। ऑलराइट, फाइन। एनी क्वेश्चन ऑन दिस? हेलो सर। कहिए। सर अगर कोई भी स्टॉक गैप अप या गैप डाउन हो रहा है तो क्या हम उसमें ट्रेडिंग इंटरेस्ट देख सकते हैं? ये क्या ना मतलब है सर? हाँ ओके ओके, मतलब उसमें हम लोग ट्रेड कर सकते हैं हाँ, अगर उसमें प्रॉपर अगर सेटअप। कर सकते हो। कार्तिक, एक काम करना, टाटा मोटर का खोलना चार्ट। राइट। ठीक है, अब आप लोगों को ध्यान है कि टाटा मोटर, कल मैं एक वीकली आपको फाइल दिखा रहा था, याद है? एक वीकली मैंने आपको फाइल दिखाया था मेरा स्टैक रैंकिंग वाला। उसमें मैंने आपको टाटा मोटर दिखाया था, करेक्ट? तो कल एमएनएम टॉप लूजर क्लोज हुआ। ठीक है, ऑटो सेक्टर के 4 व्हीलर का स्टॉक है, मानते हैं सब, करेक्ट? अब टाटा मोटर में आज मार्केट कैसा ओपन हुआ? आज साइडवेज ओपन हुआ। अगर साइडवेज ओपन हुआ है, ठीक है, तो वीक सेक्टर इज ऑटो। ठीक है, तो वीक सेक्टर का जो स्टॉक है वो हो सकता है कि कोई ना कोई स्टॉक ऊपर जा सकता है। ओके, तो आप अगर देखो तो टाटा मोटर में, ओके, एक सडन फॉल आया, ये लो के नीचे गया, राइट? ये लो के नीचे गया। अब कार्तिक, किसको थोड़ा रिड्यूस करना चार्ट को, मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न दिखाता हूँ जो कि रेगुलरली रिपीट होगा। रिड्यूस करना है चार्ट को। हाँ, वेरी गुड। अब आप क्या करो, मुझे ये बताओ कि कल का जो दिन था टाटा मोटर्स में, क्या उसने परसों के हाई को या लो को कहीं भी तोड़ के क्लोज हुआ था? नहीं हुआ, राइट? तो आप अगर कल, मतलब उससे पहले दिन का हाई और लो को क्लोज नहीं हुआ और कंप्लीटली साइडवेज था, तो आप एक लाइन खींचोगे वेडनेसडे के लो पे और वेडनेसडे के हाई पे। आपको दिख रहा है कि ये लो के नीचे गया, लो पे सपोर्ट बना करके ऊपर निकल गया। दिस इज अ 40% रिटर्न ऑन कैपिटल। यस और नो, ऑल ऑफ यू? ठीक है, अब ये If you एक have an ऐसा inside day, so the previous low, प्रीवियस लो एंड हाई शुड होल्ड। you have an inside day, the previous low. द प्रीवियस लो एंड हाई शुड होल्ड।
ठीक है। दूसरा चीज, आप इसमें एक चीज बताइए, वेडनेसडे को जब टाटा मोटर ट्रेड हुआ तो क्या वेडनेसडे का हाई और लो ट्यूसडे के हाई और लो के बीच में कॉन्फाइंड था? कंप्लीटली उसके बीच में इनकैप्सुलेटेड था? यस, राइट, इनकैप्सुलेटेड था, राइट। ओके, तो आप देख सकते हो कि जो वेडनेसडे को ट्रेड हुआ था टाटा मोटर्स, तो टाटा मोटर कंप्लीटली अपने ट्यूसडे के रेंज के अंदर था, ओवरऑल रेंज के अंदर था। ठीक है, इस सिचुएशन को हम लो वॉलेटिलिटी कहते हैं। ओके, ये जो पैटर्न बनता है ये पैटर्न है लो वॉलेटाइल पैटर्न। ठीक है, जहां पे कि मार्केट स्टॉक जो है वो अपना वॉलेटिलिटी रिड्यूस करती है, लोअर डाउन करती है। वॉलेटिलिटी रिडक्शन का मतलब होता है कि अ, जो शार्प मूवमेंट्स हैं उसको कम करती है। ठीक है, तो जब भी ऐसा होता है, ओके, जब भी इस तरीके का पैटर्न बनता है कि अ, अ, किसी एक डे के बीच में कॉन्फाइन हो करके कोई स्टॉक जो है वो क्लोज हो जाता है, तो वो लो वॉलेटाइल डे होता है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो? ओके, कि आप ये देखोगे कि अब जैसे टाटा मोटर में पहली बार वो किस तरफ को जाने की कोशिश कर रहा है, वो ट्यूसडे के लो को तोड़ने की कोशिश कर रहा है या ट्यूसडे के हाई को तोड़ने की कोशिश कर रहा है? ठीक है, अगर तो वो ट्यूसडे के लो को तोड़ने की कोशिश कर रहा है और ट्यूसडे ट्यूसडे में ही वो पलट जाता है, मतलब वो टूटता है और टूट करके रिवर्स हो जाता है, तो मोस्ट लाइकली वो ऊपर जा रहा है, वो अब ट्यूसडे के हाई की तरफ जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, क्योंकि अब ये चॉपी हो चुका है, ये रेंज बाउंड हो चुका है कंप्लीटली। ओके, ये जो वेडनेसडे वाला बिहेवियर है, ठीक है, ये जो वेडनेसडे वाला बिहेवियर है, ये जो बिहेवियर है ये हमें ये बता रहा है कि ये जो ट्यूसडे की कैंडल है, ओवरऑल जो हाई और लो है इसका, अब ये रेंजेस डिफाइन कर रहा है टाटा मोटर का। ठीक है, और अगर टाटा मोटर का लो ये तोड़ने की कोशिश करेगा, ट्यूसडे का लो तोड़ने की कोशिश करेगा, तो बुलिश हो जाने के चांसेस हैं, और अगर ट्यूसडे के हाई को तोड़ने की कोशिश करेगा तो बेरिश हो जाने के चांसेस हैं। ठीक है, इज दिस क्लियर? अब कार्तिक एक काम करो, टाटा मोटर पे आप 15 जून के क्लोजिंग पे एक लाइन खींच दो। ओके, और उसका कलर कुछ अलग कर देना और उसका थिकनेस थोड़ा बढ़ा देना, और 8 जून पे भी एक खींच देना लाइन क्लोजिंग कैंडल पे। ठीक है, खींच दिया।
ठीक है, एक 8th का क्लोजिंग प्राइस और एक 15th का क्लोजिंग प्राइस पे लाइन खींच देना। ठीक है, अब चले जाओ आज के दिन पे। ठीक, ओके। अब आप देखिए ये वाला जो बिहेवियर है ये 2 हफ्ते के रेंज के बीच में हुआ है। ये जो लो वॉलेटिलिटी वाला जो सिचुएशन आया था वो 2 हफ्ते के बीच में हुआ है, राइट। 2 हफ्ते का जो क्लोज प्राइस है उसके सेंटर में कहीं पे हो रहा है। ठीक है, तो ये ओवरऑल भी साइडवेज है। ठीक है, और साइडवेज स्टॉक्स का बिहेवियर क्या होता है, वो ये होता है कि वो एक तरफ को जाएगा, टप्पा खाएगा, दूसरी तरफ को जाएगा, वहां से बाउंस करेगा, फिर नीचे की तरफ आएगा, फिर ऊपर की तरफ जाएगा, फिर नीचे की, और ये शायद महीनों तक करता रहेगा। उसके बाद किसी एक तरफ को डिलीवरी बेस्ड सेलिंग या फिर डिलीवरी बेस्ड बाइंग होगा और दैट विल चेंज द रेंज ऑफ द स्टॉक। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी स्टॉक्स को ट्रेड कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस मतलब ये हिस्टोरिकल डेटा उठा लीजिए, आपको ऐसे ही पैटर्न दिखेंगे, यही पैटर्न रिपीट होता है हर बारी हर स्टॉक के साथ। ठीक है, बस आपको सावधानी से इस्तेमाल करना है और कुछ नहीं है। नहीं सर नहीं, यहाँ 2 वीक्स पे मैंने वो इसलिए ड्रॉ रेंज करा तोड़ा नहीं, सॉरी। हाँ गोविंद जी, 2 वीक्स मैंने इसलिए ड्रॉ कराया कि मैं आपको बस दिखाना चाहता था कि कहाँ पे हो रहा है ये, और कोई रेलेवेंस नहीं था। 2 वीक्स पे जब आप लाइन खींचते हो लास्ट फ्राइडे और लास्ट टू लास्ट फ्राइडे, तो वो एक ही हफ्ते का रेंज होता है एक्चुअली। हाँ करते हैं। सर ये 18th को it had gone above that range हम्म, and actually closed again under, but हम्म, again we tried to go and again close under, so these are indications that these ranges are going to hold. हाँ ये डेट बताना कब की है? 18th को सर ये 18th रेंज का है, तोड़, ये पहला जो वाला क्लोजिंग है वो तोड़ के ऊपर गया था, ऊपर गया। ये वाला 18th है, हाँ, ऊपर गया और क्लोज नीचे की नीचे आया तरफ है हो गया। उसके। हाँ, अगले दिन वो हाँ, फिर ऊपर खुला और ये और अपने रेजिस्टेंस पॉइंट से सेल ऑफ होकर के फिर वापस आ नीचे गया आया। नीचे। ठीक है, वहीं से उसी जगह से वो सेल ऑफ होके नीचे आ गया। अब जब सेल ऑफ होके नीचे आ गया तो उसके अगले दिन लो वॉलेटाइल सिचुएशन हो गया। ठीक है, अब यूजुअली होगा क्या, या तो स्टॉक अपने लोअर एंड ऑफ द रेंज की तरफ जाने की कोशिश करेगा, मतलब या तो वो बियरिश हो जाने की कोशिश करेगा या फिर बुलिश हो जाने की कोशिश करेगा, है ना। अब हुआ क्या कि इस बीच में कल कल का दिन में टाटा मोटर्स पे एक न्यूज आया जेएलआर को लेके कि जेएलआर में कुछ द न्यू सीईओ इज ट्राइंग टू डू सम कस्टमर सर्विस वाला, वो तो उन्होंने इन्वेस्टर्स मीट वगैरह रखा था। ठीक है, विच हैपेंड येस्टरडे। ओके, तो ऐसी चीज़ों का थोड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट तो होता ही है। अब जैसे कल मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बताया था आपको, कल शाम को आपका क्लास के दौरान ही वो उसमें आ गया था ना मेरे मनी कंट्रोल में, विजय माल्या केस वाला, याद है, बताया था ना आप लोगों को कि हो सकता है कि कुछ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कुछ पॉजिटिव हो जाए कल, क्योंकि न्यूज़ आई है। तो जनरली अगर, क्योंकि बहुत बड़ा एक्सपोजर है विजय माल्या के केस में, तो लोग तो हो सकता है कि थोड़ा पॉजिटिवली रिएक्ट कर जाएं। आज देखो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्या हुआ है।
है ना। तो इस टाइप की छोटी छोटी चीजें हैं, इनको आप कर सकते हो, यू कैन ट्रेड इट, द लॉजिक्स विल रिमेन सेम, लॉजिक्स विल नॉट चेंज। कल का टॉप गेनर कौन था? IOC, IOC, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, राइट। अब yeah. आईओसी इज अ क्या बोलते हैं उसको, एनर्जी वाला स्टॉक, राइट। अब आज मॉर्निंग में तो कुछ एनर्जी का टॉप में या बॉटम में खुला नहीं, राइट। अब आप एक बारी रिलायंस को और बीपीसीएल को स्टडी कर लो। ठीक है, अब रिलायंस में आप देखो एक बहुत बड़ा सा वॉल्यूम के साथ एक पैटर्न बना था, ठीक है। वहां से एक बहुत शार्प अपवर्ड मूवमेंट होने की इसने कोशिश करी, ठीक है। इसी तरह से बीपीसीएल आप देख सकते हो, ठीक है। ये तो रिपीटेबल पैटर्न है, मतलब ये तो रिपीट होता है, हमेशा रिपीट होता है। राइट। अब इसमें देखिए बीपीसीएल में देयर वाज अ शार्प पैटर्न, एक डाउनफॉल आया, रेड पैटर्न्स बने लेटर हाफ ऑफ द डे के आसपास, ठीक है। स्टॉक में एक शार्प अपसाइड मूव आया एग्जैक्टली उसी के बाद, एक सेलिंग हुआ एक जगह, हाँ देखो, ठीक है। इसने एंट्री नहीं दिया विच इज अ डिफरेंट केस, बट अगर आप ऐसे देखें तो एक सेलिंग हुआ, पैटर्न में सेलिंग आया, सेलिंग होते ही वो रुक नहीं पाया वहां पे। आप देखो 420 रुपए के आसपास से प्राइस जो है 427 रुपए चला गया, ठीक है। सर अभी ये रिट्रेस यहाँ हुआ है तो ये बाइंग स्पॉट नहीं है? नहीं, अभी अब ये तो खैर मार्केट ही क्लोज हो गया, तो एनीवेज मतलब ये टुवर्ड्स द एंड ऑफ द फैग एंड ऑफ द मार्केट था ना, तो इस वजह से ट्रेड भी नहीं किया इसको। Assuming this was midday, this would have been a buying case. हाँ, यू शुड हैव बॉट द बॉटम ऑफ द बॉक्स। हाँ, ऊपर वाला भी बाई कर सकते हो, पर आप बॉटम ऑफ द बॉक्स भी बाई कर सकते हो, बॉटम एज, क्योंकि ये ग्रीन कलर का कॉन्टिन्यूस पैटर्न है ना, सॉरी रेड कलर का कॉन्टिन्यूस पैटर्न है ना। तो जहाँ पे कॉन्टिन्यूस पैटर्न्स बनते हैं वो कॉन्टिन्यूस पैटर्न्स को आप एजेस पे ट्रेड कर सकते हैं। ओके, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड।
Sorry guys, I'm back. Okay, can you all hear me now? Yes. Okay, good. ऑलराइट, तो बेसिकली ये आप देख सकते हो एक फैग एंड पे था, पर आइडियली हमको यहाँ पे बाइंग मिल जाना चाहिए इन केसेस में, इस वाली जगह पे, क्योंकि ये पैटर्न डेवलप हुआ है ना यहाँ पे, इस वाली जगह। ठीक है, तो मोस्ट लाइकली हमको इस एंड पे वो बाइंग मिलना चाहिए। ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? I have noticed that there is second. I have noticed that there is movement in stock after 230. हाँ, एक्चुअली होता है, क्योंकि अगर किसी में BTST होना होता है तो उसमें एंड ऑफ द डे पे ही होता है मूवमेंट। तो जनरली हर स्टॉक में तो नहीं होगा, पर जो स्टॉक्स बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाते हैं उनमें आपको ऐसा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। सर ये BTST कैसे करते हैं? देखो, BTST में बेसिकली क्या होता है कि अगर आपका जो वॉल्यूम है वो इस वाली जगह पे जाके, ये वाला जो जगह है यहाँ पे जाकर के पिछले 3-4 डेज के वॉल्यूम को तोड़ने लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे तो पहला कैंडल ही इतना बड़ा है, इसने तो तोड़ा नहीं। पर BTST के केसेस में क्या होगा कि बहुत दिनों से वॉल्यूम जो है ऐसे छोटा 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 बनेगा, और अचानक से किसी एक दिन पे आखिरी के ये जो 3-4 कैंडल होंगे वो इतने बड़े बड़े बनेंगे कि वो पिछले 3-4 दिन, एक हफ्ते का वॉल्यूम, किसी भी 5 मिनट का वॉल्यूम से 10 गुना 20 गुना ऊपर होंगे। वो आपको BTST इंडिकेट करता है। पर आई ऑलवेज रिकमेंड कि BTST को एक दिन पहले खरीदने से अच्छा होता है उसके नेक्स्ट डे मॉर्निंग में खरीदना। Okay, any other question? सर जब मार्केट क्लोज हो रहा था SBI में ग्रीन जोन भी बन रहा है सर। सर तो उसको उसको भी हम लोग ट्रेड कर सकते हैं क्या? मतलब तो 3 तो बज गया, उसके बाद हमको ट्रेड नहीं करना है, लेकिन रेड जोन के बाद आपका ग्रीन जोन भी बन रहा है, तो उसको हम लोग क्या ट्रेड कर सकते हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यस सर। ओके, ओके, ये रेड की बात कर रहे हैं? हाँ, रेड में ये लास्ट में देखिए सर, 2:15 के बाद एक ग्रीन जोन बना है सर, इस वाली जगह पे ना, ये वाला। यस सर। हाँ, काफी लेट है एक्चुअली, इसको ट्रेड यहाँ पे करना है, इस वाली जगह पे कहीं पे करना है, क्योंकि आज वैसे भी मार्केट साइडवेज है ना।
यस सर। तो अगर साइडवेज होता है तो हम कोशिश करते हैं कि इंट्राडे लोस को खरीदें, है ना? क्योंकि हाँ देखो सर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कुछ ऐसा तो था नहीं कि ये टॉप गेनर टॉप लूजर या कुछ मार्केट एग्नोस्टिक वाले सिम्टम्स तो थे नहीं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को प्योरली उठाया गया था विजय माल्या वाली स्टोरी पे, राइट? राइट। तो उसको थोड़ा सा सेफ होके खरीदना जरूरी होता है। तो उस केस में जैसे मार्केट का आज का ओपनिंग साइडवेज था, तो अगर ये इंट्राडे लोस पे जा रहा था फिर पैटर्न्स बना रहा था तो वहां से खरीदा जा सकता था, पर इंट्राडे हाई पे नहीं तो खरीदना। ठीक है, इंट्राडे हाईज या पे खरीदना या इंट्राडे लोस पे बेचना हम तभी करते हैं अगर मार्केट जो होती है वो ट्रेंडिंग ओपनिंग करती है और ट्रेंडिंग मतलब ट्रेंडिंग में होती है, तब हम प्रेफर करते हैं। ठीक है, और एक और चीज हमेशा ध्यान रखना है कि मार्केट में मिसलीडिंग कैरेक्टर्स क्या होते हैं कि जैसे मान लो टॉप लूजर खुल गया, टॉप लूजर क्लोज हो गया कुछ, ठीक है, तो आपको लगेगा बियरिश है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि वो बियरिश है। ठीक है, टॉप लूजर होने का मतलब वो सस्ता हो गया है। अगर उसमें कोई बियरिश कॉन्फर्मेशन आपको नहीं मिल रहे हैं तो आपको उसे बेचना नहीं है, अगर वो गिरेगा तो उसको खरीदना है। ठीक है, और इसी का उल्टा होता जब स्टॉक जो है ऊपर जाता है। ठीक है, तो अगर कुछ ऊपर चला गया है, ओके, हो सकता है वो वाला स्टॉक अगले दिन जो है वो ऊपर नहीं जाएगा, पर उस सेक्टर का कोई दूसरा स्टॉक जो हेल्दी पैटर्न्स बना रहा है उसमें ऊपर 2-3% जाने की कैपेबिलिटी होगी। ठीक है, तो वो हाना करके कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आपके लाइमलाइट में आएगा, जैसे कि प्री ओपन में शायद टॉप लूजर गेनर खुल जाएगा या फिर गैप डाउन खुल जाएगा या गैप अप खुल जाएगा। तो उस तरीके से वो इंडिकेट करेगा कि ये वो सेक्टर का स्टॉक है जो कि जिसमें कि आज बाइंग इंटरेस्ट है या सेलिंग इंटरेस्ट है। ठीक है, अब पवन एक बात बताओ मुझे कि यस। इन जनरल, ठीक है, बिना चार्ट देखे बिना कुछ वो करे केवल एनएससी की वेबसाइट पे एक दो डेटा पॉइंट देखने से हमें स्टॉक का करंट ट्रेंड कैसे पता लग सकता है? करंट ट्रेंड। किसी भी स्टॉक का कि वो ऊपर जाना चाह रहा है या नीचे जाना चाह रहा है, केवल मार्केट पार्टिसिपेशन के डेटा को देख के आप कैसे पता लगा सकते हो? वॉल्यूम को देख करके। हाँ, कैसे? मीन्स वॉल्यूम पैटर्न्स को देख करके, नहीं, मतलब चार्ट चार्ट के थ्रू देखने बोल रहे हैं या सिर्फ एनएससी साइट से आप बोल रहे मान हैं लो कि? एनएससी के वेबसाइट पे देख रहे हो, चार्ट पे नहीं। ओके ओके ओके। वो अच्छा, कैसे एनएससी हम? है तो सर, प्री ओपन मार्केट में हम देखेंगे कि कौन सा है जो है आपका स्टॉक टॉप टॉप बना है और कौन सा जो है आपका नहीं नहीं नहीं, लास्ट में मेरा आया है। क्वेश्चन डिफरेंट है। मेरा क्वेश्चन ये है कि एनएससी के वेबसाइट में आप मान लीजिए एक जो सिंपल अपनी इंटरफेस वाली जो रिपोर्ट होती है, जो आर्काइव्स वाली रिपोर्ट होती है, केवल उस प्लेन रिपोर्ट को देख करके आपको आप कैसे अंदाजा लगा सकते हो कि स्टॉक का ट्रेंड क्या चल रहा है इस महीने? वो नीचे जाना चाह रहा है या वो ऊपर जाना चाह रहा है? सर उसको निफ्टी 50 के ये से देखेंगे, वो मार्केट एक्टिविटी रिपोर्ट के थ्रू उसको देखने की कोशिश करेंगे। ओके, सो कार्तिक इज सेइंग डिलीवरी वॉल्यूम। ठीक है, तो दैट इज हाउ आप देखोगे उसको। अगर डिलीवरी वॉल्यूम बढ़ता है और प्राइस नीचे गिरता है, ओके। ये सीखा है ना हमने, सिंपल जी सा सर। हमें वो रिपोर्ट ओपन कर लेना है
और उसमें ये देखना है कि अगर डिलीवरी वॉल्यूम जिस जिस दिन पे ब्रेकआउट कर रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है, मान लो 2 गुना 3 गुना हो रहा है, तो क्या प्राइस ऊपर जा रहा है या प्राइस नीचे जा रहा है? अगर तो प्राइस नीचे जा रहा है तो इसका मतलब और वो अगर रिपीटेडली हो रहा है, पहली बार हुआ महीने में, फिर दूसरी बार भी हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? एस्टैब्लिश हो गया कि जितनी बार वॉल्यूम बढ़ेगा ये स्टॉक का प्राइस नीचे की तरफ जाएगा। राइट सर। ठीक है, उसी तरह से अगर डिलीवरी वॉल्यूम बढ़ता है और स्टॉक का प्राइस चढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइस जो है वो वॉल्यूम बढ़ने पे ऊपर जाना चाह रहा है, तो वो अप ट्रेंड में। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है इनमें, डिलीवरी वॉल्यूम को इसलिए देखते हैं क्योंकि कल भी हमने बात करी थी ना, डीप पॉकेट इन्वेस्टर। यस सर। ठीक है, तो डीप पॉकेट इन्वेस्टर का मतलब क्या है? डीप पॉकेट इन्वेस्टर आएगा तो डिलीवरी ही बढ़ाएगा, क्योंकि वो तो इन्वेस्टर है ना। वो या तो अपना माल फेंक के चला जाएगा, मतलब बेच के चला जाएगा, एग्जिट होके चला जाएगा, या फिर आके नया माल खरीदेगा। ये दो ही चीजें कर सकता है ना इन्वेस्टर। अगर तो उसके पास पहले का माल पड़ा हुआ है तो या तो वो आएगा एग्जिट कर जाएगा, वो कहेगा मुझे नहीं चाहिए, अब जो पैसा मिल रहा है उसको लो और खत्म करो इसे। ठीक है, तो वो तो हो गया एग्जिट करना, और तो वो भी इन्वेस्टर ही करेगा। और इन्वेस्टर दूसरी चीज कर सकता है कि वो एक्यूमुलेट कर सकता है, कि वो बाइंग कर रहा है कि अरे यार ये ऊपर जाने वाला है, इसको खरीद लो। ठीक है, तो दोनों ही केसेस में इंपैक्ट कौन से वाले नंबर पे आएगा? वो वॉल्यूम पे नहीं आएगा, वो आएगा डिलीवरेबल वॉल्यूम पे। क्योंकि शुरुआती क्लास में लास्ट वीक में मैंने समझाया था कि जो डिलीवरी वॉल्यूम होता है वो इन्वेस्टर बनाता है ना। और जो टोटल वॉल्यूम Yes. दिखता है हमें रिपोर्ट पे, उसमें से अगर डिलीवरेबल वॉल्यूम को माइनस कर दोगे तो वो स्पेक्यूलेटर बनाता है। स्पेक्यूलेटर का मतलब होता है इंट्राडे ट्रेडर। करेक्ट? यस। तो आप अगर प्रोडक्ट्स, इक्विटीज, हिस्टोरिकल डेटा, मान लो आर्काइव्स पे चले जाते हैं और सिक्योरिटी वाइज ओपन कर लिया, अब मान लो कुछ भी यहाँ पे खोल लेते हैं, कुछ भी SBIN खोल लिया, ठीक है, और इक्विटीज EQ एंटर, और यहाँ पे मान लो 1 मंथ लिखा, गेट डेटा कर दिया। ठीक है, अब देखो ये जो डिलीवरेबल क्वांटिटी होती है यहाँ पे जो दिख रही है, ये हमेशा इन्वेस्टर बनाता है, ये स्पेक्यूलेटर नहीं बना सकता। इसका नंबर स्पेक्यूलेशन से नहीं बढ़ सकता। इसका नंबर जो बढ़ेगा या घटेगा वो इन्वेस्टर की वजह से होगा। पर ये जो टोटल ट्रेडेड वैल्यू है, ये जो टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी है, इस वाले नंबर में से अगर इसको माइनस कर दोगे डिलीवरेबल क्वांटिटी, तो वो वाला जो वॉल्यूम निकल के आएगा, जो सॉल्यूशन आएगा उसका कि दिस माइनस दिस, वो होगा इंट्राडे ट्रेडर का आज का वॉल्यूम। ठीक है, तो हम जानते हैं कि डिलीवरेबल वॉल्यूम तो इन्वेस्टर ही बना सकता है। तो अगर डिलीवरेबल वॉल्यूम बढ़ने से अगर प्राइस गिर रहा है तो इसका मतलब इन्वेस्टर एग्जिट कर रहा है। ठीक है, और अगर डिलीवरेबल वॉल्यूम बढ़ने से प्राइस ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब इन्वेस्टर एक्यूमुलेट कर रहा है उसे। सिंपल है ना। ओके, तो ये एक सिंपल सा तरीका है किसी भी स्टॉक के ट्रेंड को किसी भी महीने में फाइंड आउट करने का। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज होती है फ्रेंड्स कि आप हमेशा स्टॉक मार्केट को या स्टॉक को ना किसी एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम से देखना है आपको। ठीक है, अब इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो दिन में कर रहे हो, तो एक ही दिन में कर रहे हो, पर जो लाइन इन द सैंड आप ड्रॉ करोगे, ठीक है,
वो होंगे आपके वीकली, मंथली, ईयरली। ठीक है, तो इस तरह का डेटा पॉइंट होगा हमेशा आपके पास। तो अब आप अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हो तो आप उसको स्टैंड अलोन में देख करके ट्रेड मत करो। उसको थोड़ा सा पहले समझो कि अच्छा यार इस महीने में या इस वीक में क्या चल रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। जब वॉल्यूम बढ़ता है तो क्या प्राइस गिरता है, या वॉल्यूम बढ़ता है तो प्राइस ऊपर जाता है। ठीक है, अब कल हमने डीप पॉकेट इन्वेस्टर की बात करी थी, पवन ने एक सवाल पूछा था हमसे, यस और नो, कि कैसे पता चलता है कि डीप yes. पॉकेट इन्वेस्टर है। अब देखो रिलायंस में आज मैंने जब वो टेलीग्राम मैसेज भेजा था, आप देख रहे हो ये जो वॉल्यूम्स आए, ये वाले जो वॉल्यूम्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये कल के वॉल्यूम से बहुत ज्यादा है, मानते हो सब? ठीक है, और ये देखिए जब ये वाला वॉल्यूम बना, ये वाला, तो आप देख रहे हो कि इंक्रीजिंग शॉर्ट्स थे यहाँ पे, ये देखिए ऐसे करके बना, और एकदम से ये एक बड़ा सा कैंडल आया, तो हमें ऐसा लगने लगा कि शायद यहाँ पे सेलिंग हो गई है, पर एक्चुअली यहाँ पे सेलिंग नहीं हुई है, यहाँ पे बाइंग हुई है। तो ये लाल और हरे से मिसलीड नहीं होना, आपको ये देखना है कि ओवरऑल स्टॉक में चल क्या रहा है। जब भी रिलायंस का वॉल्यूम बढ़ता है इस महीने में, तो क्या प्राइस ऊपर जाता है या प्राइस नीचे रह रहा है रिलायंस के अंदर? ऊपर जा रहा है, राइट। अगर आप यहीं से देख लो इस चीज को, मान लो रिलायंस लिख दो, राइट, देखो 1 जून, ये देखो यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा, जब वॉल्यूम बढ़ा तो प्राइस ऊपर गया, राइट। फिर वॉल्यूम बढ़ा तो प्राइस ऊपर गया, राइट। तो जितनी बार भी प्राइस सॉरी वॉल्यूम ऊपर, जो डिलीवरेबल क्वांटिटी ऊपर जा रही है, बढ़ रही है, तो प्राइस भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो आपके दिमाग में क्या चलेगा कि अगर यहाँ पे इतना बड़ा वॉल्यूम बढ़ा है, एक बड़ा वॉल्यूम आया है, तो सेलिंग थोड़ी हुई है, बाइंग हुई होगी ना, चाहे उसका रंग लाल हो, हरा हो, पीला हो, नीला हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपने हाइपोथेसिस को बनाना होता है। ठीक है, और ठीक उसी के बाद देखो आप एक शार्प अप मूव आया, दैट मूव वाज ऑलमोस्ट 1% इन नो टाइम। ठीक है, तो विच इज ऑल्सो शोइंग कि शायद इसमें एक्यूमुलेशन इस लेवल पे लोगों ने किया उसके बाद। ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से डीप पॉकेट इन्वेस्टर आ रहा है इसमें। अब देखते हैं एक और चीज, अभी ये कौन सा तारीख है, 29 मई। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये वाला सेक्शन देखिए, ये पूरा अप्रैल का महीना है, राइट, मानते हो? ये यहाँ से लेके यहाँ तक अप्रैल का महीना है, राइट। और अप्रैल के महीने में जो भी हाईएस्ट वॉल्यूम गया है वो लगता है यहाँ पे गया है। ठीक है, इस वाली जगह पे अब देखो, यहाँ से मार्च चालू हो गया था इस वाली जगह से, इस जगह पे वॉल्यूम ब्रेकआउट होना शुरू हुआ था, देखो यहाँ लगा लो। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ था पहली बार 29 मई, ये सुनो, पिछले महीने का जो भी हाईएस्ट 5 मिनट्स का वॉल्यूम था
वो इस वाली कैंडल ने ब्रेकआउट किया था, करेक्ट? अब देखते हैं। ठीक है, मुझे तो ये सब मैजिक लगता है। ये वाला कैंडल है, राइट? 11:20 का, ये वाला, ठीक है। 11:20 पे ये यहाँ पे था, ठीक है। एक सिंपल सा एक बॉक्स बना दे रहा हूँ, ठीक है। आउटस्टैंडिंग वॉल्यूम है, देखो प्राइस गिरा गिरा नीचे जा रहा है। ये देख रहे हो आप, प्राइस ब्रेकआउट हुआ जब, इसी लेवल से सपोर्ट लेकर के मूव करता हुआ चला गया। ओके, अब द थिंग इज कि आप इन सब चीज़ों को पकड़ सकते हो। ये इस टाइप के जो स्टॉक्स होते हैं वो महीने में 2-3 मिल जाते हैं आपको निफ्टी 50 के अंदर, ठीक है। कभी कोई सेक्टर का होगा, कभी किसी सेक्टर का होगा, ठीक है। तो यहीं से पता चल रहा था कि रिलायंस जो है वो लीडर बनने वाला है, ठीक है। पर इसमें सिर्फ प्रॉब्लम एक ही होती है कि आपको अपने सिस्टम को थोड़ा सा, मतलब आपको और मेहनत करना पड़ेगा, डेटा के साथ थोड़ा सा खेलना पड़ेगा, ठीक है ना, जिससे आपको ये पता लग जाए कि यार पिछले महीने में रिलायंस का किसी भी 5 मिनट में जो हाईएस्ट वॉल्यूम था वो कहाँ पे था, ठीक है। फिर आपको पेशेंस रखना होगा, राइट? तो इस तरह की चीजें हैं, और अगर आप इस्तेमाल करोगे, ठीक है, ये सब रिपीटेबल पैटर्न्स है, मतलब इनमें कुछ भी नहीं है। आप पुराना कोई भी डेटा उठा लो, यही दिखने वाला है आपको, मतलब कुछ अनोखा नहीं दिखेगा आपको। ये ऐसे ही होता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये सब मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा ये लेबोरियस है। लेबोरियस इन द सेंस कि मतलब बहुत डिसिप्लिन चाहिए, फोकस चाहिए। हाईएस्ट वॉल्यूम कैन बी आइडेंटिफाइड इन डिलीवरी वॉल्यूम। हाँ, डिलीवरी वॉल्यूम से भी उठा सकते हो। आप एक रिपोर्ट रन कर लो, आप ये देखो कि पिछले महीने जो हाईएस्ट डिलीवरी वॉल्यूम था किसी भी स्टॉक का वो कितना था। अगर अगले महीने में किसी भी दिन पे, मतलब वो करना तो बहुत ही आसान है ना। बस एक रिपोर्ट को ही रन करना है कि नेक्स्ट मंथ में जब लाइव ट्रेड्स चल रहे हैं तो आपने चेक करना शुरू किया कि पिछले महीने का हाईएस्ट जो डिलीवरी वॉल्यूम था वो क्या ब्रेक हो रहा है कहीं पे, और अगर ब्रेक हो रहा है तो उसके बाद एक्टिविटी क्या हो रही है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है या नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। इफ देयर इज अ ह्यूज वॉल्यूम विच इज कमिंग एट द डाउन ट्रेंड, ओके, और उसके बाद जितनी बार भी वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्राइस अगर ऊपर जा रहा है तो अप ट्रेंड में चला गया है ना, ठीक है। तो दैट इज मच इजियर टू डू। ऑलराइट फ्रेंड्स, हाँ, you have to keep a record. All this works like a corporate office, huh? Emails and reports and all that. जैसे ऑफिस में होता है ना वीकली रिव्यू,
तो होना है, मंथली रिव्यू होना है, तो सब पुराना रिकॉर्ड निकालना है। पिछले महीने कस्टमर सेटिस्फैक्शन का इंडेक्स कितना था, इस महीने कितना चल रहा है, यही सब करते हैं ना ऑफिस में भी। तो स्टॉक ट्रेडिंग में भी यही सब करते हैं। पिछले महीने इसका डिलीवरी वॉल्यूम कितना था, अभी कितना चल रहा है, दोस काइंड ऑफ स्टफ। Okay, so friends, let me ask you, are the fundamentals in place now? ठीक है, स्टॉक मार्केट से अब डर तो नहीं लग रहा है, मतलब रेस्टलेसनेस तो नहीं हो रही? कॉन्सेप्चुअली स्टॉक मार्केट समझ में आ रहा है कि स्टॉक मार्केट जो है वो एक डिफाइंड प्रोसेस है, इसमें कुछ अनोखा कोई मतलब ऊपर से उतर के कोई लोग काम नहीं कर रहे हैं, सब जमीन पे रहने वाले ही लोग काम कर रहे हैं। राइट, सो एवरीथिंग इज वेरी स्ट्रक्चर्ड इन दिस मार्केट। ठीक है, द ओनली थिंग इज कि हम स्पेक्यूलेशन के साथ काम करते हैं, तो हम फोरकास्ट करते हैं, राइट। और जब आप फोरकास्ट करते हो तो यू हैव टू बी फंडामेंटली एंड टेक्निकली वेरी साउंड। ओके, तो with this I'll be closing down on conceptual items। ठीक है, जो भी आपका theoretically पढ़ाना था या जो भी था, ठीक है। yes, trading is a area where I'm still tentative। हाँ, डोंट वरी, वो अभी जो मेंटरशिप में करेंगे ना, उससे वो वाला चीज जो है वो और स्ट्रेंथन होगा। ठीक है, अभी शुरू शुरू में थोड़ा गलती भी होगा आपसे, और वो जो गलती है वो आपको एक बेटर ट्रेडर बनाएगा। ठीक है, आज अगर मैं सिर्फ ये पढ़ा के छोड़ दूंगा तो वो गलती पे गलती होता रहेगा। ठीक है, तो वो मेंटरशिप क्लास में वो गलती को पकड़ के अपने को डिस्कशन करना है, वो एक एक करके गलती पकड़ पकड़ के उसको हटाना है। जो ठीक हो रहा है उसको तो ठीक है, विच इज गुड, जो गलत हो रहा है उसको ठीक कैसे करना है हमें। तो ये प्लेसिंग अ ट्रेड वगैरह वो सब आपको वो होगा उसमें। ठीक है, और कल का मैं जो सेशन करूंगा, ओके, tomorrow we'll have this session at 11, okay, in the morning. It's okay with everybody, right? सर कल मैं 11 बजे अवेलेबल नहीं रहूंगा, तो क्या सर वीडियो उसका मिल सकता है सर? हाँ, वीडियो तो मिलेगा ही। ठीक है, तो ओके। आप क्योंकि कल का जो क्लास है वो रिवीजन क्लास है पूरी तरह से। ठीक है, तो कल मैं क्या कर रहा हूँ कि जो कुछ भी हमने पढ़ा है पिछले कुछ दिनों में, मैं उसको स्टेप बाय स्टेप स्टॉक सिलेक्शन, ट्रेंड को कंफर्म करने के कौन कौन से तरीके सीखे हैं, ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के कौन कौन से तरीके सीखे हैं, कहाँ पे कौन से पैटर्न जो मैंने आपको बार बार बताया है जो रिपीट होते हैं। ठीक है, ये सब कुछ मैं रिवाइज करूंगा कल 2 घंटे। ओके सर। ठीक है, और फिर मंडे से आप लोग जो है फिर मेंटरशिप क्लास में आएंगे और आपका ट्रेड्स डिस्कस करेंगे। अभी आपको केवल 1-1 ट्रेड ही करना है, 1-1 क्वांटिटी ट्रेड। ओके ओके सर। सर मंडे का क्या टाइमिंग होगा सर मेंटरशिप क्लास का? मंडे को मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग 7 से 8 o'clock कर लेंगे। ओके 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 सर। ठीक है, वो कल हम डिस्कस कर लेंगे, सब आ जाएंगे जब क्लास में, एक बार बात कर लेंगे। तो वही 7 to 8 मैं सोच रहा हूँ। 7 to 8 तो होता नहीं है, वही 7 to 8:30 काइंड्स, 8:39। इवनिंग राइट सर? हाँ, इवनिंग। ओके। ओके, सो एनी क्वेश्चंस फ्रेंड्स, कोई सवाल? रंजन, ऑल फाइन? सर एक ही वो यस सर। बोलो।
Ranjan, you go ahead. Okay, सर एक क्वेश्चन था विद रिगार्ड्स टू वर्ल्ड मार्केट्स। हमें सर ये वर्ल्ड मार्केट का इम्पैक्ट निफ्टी पे मतलब कैसे है उसको एनालाइज करना है? इफ समथिंग इज गोइंग ऑन इन वर्ल्ड मार्केट्स इन नैस्डैक और एशियन मार्केट्स और यूरोपियन मार्केट्स, हाउ डू वी एनालाइज लाइक व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन निफ्टी? देखो आइडियली ये क्या मुझे होगा, क्वेश्चन। जो मैंने आपको एक वीकली लाइन ड्रॉ करके एक मेथड बताया ना निफ्टी में, वीकली वो क्लोजिंग लाइन, राइट? क्लोजिंग लाइन जो बनाना है, ठीक है, वो जो Right. वीकली वाला क्लोजिंग लाइन का जो मेथड मैंने आप लोगों को बताया है, दैट टेक्स केयर ऑफ द वर्ल्ड अनसर्टेनिटीज। ठीक है, ओके। अब मैं उसका आपको एक फैक्ट उदाहरण देता हूँ। इस हफ्ते में जो दो बड़े बड़े इवेंट्स थे वो थे, पहला जो ये डोनाल्ड ट्रम्प का और इसका जो साउथ कोरिया वाला मीटिंग था, ठीक है। दूसरा था ओपेक का मीटिंग, जो तेल के व्यापारी हैं उन लोगों का मीटिंग, जो ऑल कंट्रीज, जिसमें कि रशिया और इसका चल रहा था ना क्या, ईरान का, कि उनका प्रोडक्शन बढ़ाना है एंड ऑल दैट। ये दो Right. वर्ल्ड इवेंट्स चल रहे थे इस हफ्ते में, ठीक है। तो जब वो चल रहे थे तो आपने देखा कि निफ्टी जो है वो अपने वीकली क्लोजिंग लेवल्स के नीचे था। Yes. वो हमें बता रहा था अनसर्टेनिटी, ठीक है। उसी तरीके से जब निफ्टी वीकली लाइंस के ऊपर होता है तो वो हमें वर्ल्ड मार्केट्स में ऑप्टिमिज्म बताता है। ओके। ठीक है, तो जनरली क्या होगा कि ऑप्टिमिज्म है या नहीं है वो आपको वो वीकली लाइंस ही इंडिकेट कर देंगी। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा डेटा एनालाइज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर निफ्टी में भी ड्रॉ करके चलोगे उसको तो इट इज़ गोइंग टू टेल यू, ठीक है। और अभी देखो, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अ बिग ब्रेकआउट इन निफ्टी एनीवेज। निफ्टी वुड बी चॉपी टिल इलेक्शंस, ठीक है। अब उसके बाद अगर निफ्टी को ब्रेकआउट करके ऊपर जाना होगा तो जाएगा, पर इवेंचुअली निफ्टी इज गोइंग टू बी चॉपी टिल नेक्स्ट ईयर, ठीक है। अब आप मुझे एक चीज बताना, ये जो लास्ट इलेक्शन हुआ उस समय निफ्टी का लेवल कितना था रफली? लास्ट मतलब सर लोकसभा वाला लोकसभा इलेक्शन वाला, बोल रहे हो? हाँ, जब बीजेपी का गवर्नमेंट बना उस समय निफ्टी लेवल क्या था? 2000 मतलब 2014 वाला? हाँ, 2014 में नहीं सर, उस समय तो मैं ट्रैक नहीं रखा। रफली 6000, हाँ। रफली सिक्स 6000 सुना है। पॉइंट्स पे था उस समय। ओके। आज कितना है? आज 10,000 एंड अबव। रफली 10,000 11,000 है। close to ऑलमोस्ट that, निफ्टी yeah. डबल हो गया। Double. जितना वो था उसका दुगना हो गया निफ्टी। ये इस गवर्नमेंट का इम्पैक्ट था, ठीक है, अगर आप देखो वैसे, ठीक है। तो अभी आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि अभी अगले इलेक्शंस तक कुछ होने वाला है। ये ऐसे ही थोड़ा इधर उधर चॉप अराउंड करेगा निफ्टी जो है ओवरऑल। उसके बाद जब वी विल नियर इलेक्शंस और कुछ मतलब देखने को मिलेगा, कुछ सर्टेनिटी आएगी। जैसे पिछली बार सर्टेनिटी कब आई, जब बीजेपी ने डिक्लेयर किया कि नरेंद्र मोदी इज गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट। उससे पहले तो एल के अडवाणी था ना प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट। जैसे ही उन्होंने वो डिक्लेयर किया वहां से ऑप्टिमिज्म बनना शुरू हुआ, क्योंकि वो मार्केट टर्न अराउंड हो गया पूरा, अचानक से घूम गया सब कुछ। क्योंकि उससे पहले ऐसे लग रहा था कि कोएलिशन गवर्नमेंट बनेगा, ठीक है। तो मार्केट यही सब चीज छोटा मोटा जो इंफॉर्मेशन होता है इसी को लेके चलती है।
ठीक है, तो आपको वर्ल्ड सिनेरियोज जो है वो आप वीकली वाला लाइन ड्रॉ करना, उससे आपको क्लियर होगा। ओके, और सिमिलर लाइन सर, ये जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं, फिर उस टाइम पे हमें कैसे ट्रेड इनिशिएट करना है देखो कोई भी कंपनी में? क्वार्टरली रिजल्ट्स तो कंपैरेटिवली ज़्यादा सिंपल है कि आपको बस ट्रैक करना होता है कि क्वार्टरली रिजल्ट कौन से दिन पे निकल रहा है। तो वो निकालना तो बहुत आसान है, मेरा एक वीडियो भी है यूट्यूब में। आपको सिंपली वो रिपोर्ट में जाना है, कॉर्पोरेट पे क्लिक करना है, वहां से देख लेना है। ठीक है, अब आपको करना ये है कि डे ट्रेडिंग उस दिन अवॉइड करना है। ठीक है, क्योंकि चॉपीनेस होगी उस दिन पे। आपको उस रिजल्ट के निकल जाने के बाद आपको ट्रेड करना है। ओके, मतलब जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा है उस दिन नहीं करना है, उसके नेक्स्ट डे करना है। हाँ, उसके नेक्स्ट डे करना है। अब फॉर एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ आपको। अब मान लीजिए कॉर्पोरेट में जाएंगे, ठीक है, यहाँ से हम कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन से मान लीजिए रिजल्ट कैलेंडर पे चले गए। okay. अब यहाँ से मान लीजिए मैं लास्ट 1 मंथ देख लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ से मैं उठा लेता हूँ फाइनेंशियल रिजल्ट्स, ठीक है, रिजल्ट्स, और सर्च मारते हैं ऐसे ही। अब देखते हैं इसमें निफ्टी 50 का कोई स्टॉक दिखेगा हमें। ये देखो, नहीं ये नहीं। अब मान लो गेल है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, 24 मई, ठीक है। ठीक है, ये आई एम यूजिंग इट जस्ट एज एन एग्जाम्पल। ओके, 24 मई इस दिन रिजल्ट आया, ठीक है। तो मान लीजिए इस दिन रिजल्ट आ गया। अब रिजल्ट आने के बाद मैं एक चीज पहले नोट करने की कोशिश करता हूँ। देखो इस दिन वॉल्यूम बढ़ा, मानते हो सब? 17 लाख से 84 लाख हुआ यहाँ पे, ठीक है। लास्ट प्राइस ऊपर गया नीचे गया? ऊपर गया, अब राइट। क्या है सर? हाँ, अब गया। तो इसमें एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी अपने को ढूंढना है ट्रेड करने के लिए, ठीक है। अब वो नीचे से गिर के ऊपर जा सकता है या जैसे भी जाए, पर अपने को वो लॉन्ग अपॉर्चुनिटी उसमें ढूंढना है, ठीक है। तो दैट इज हाउ वी हैव टू ट्रेड आफ्टर द रिजल्ट्स, ठीक है। और 24 तारीख को जब रिजल्ट निकल गया है उसके अगले दिन आप ट्रेड कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। उसके अगले दिन अगर आप चाहो आप ट्रेड कर लो, कोई इशू नहीं है, पर उस दिन पे आपको अवॉइड करना है। तो जिस भी तरफ का ट्रेंड बन रहा है, चाहे वो अप है चाहे वो डाउन है, जो भी है, आप उसमें उस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। द सेम थिंग अप्लाइज टू जब वो बैंक का वो निकलता है ना अपना आरबीआई का पॉलिसी, ठीक है। जिस दिन आरबीआई पॉलिसी डिक्लेयर करता है उस दिन आप बैंक को अवॉइड करेंगे, ठीक है। वो तो लेकिन सर वो 2 o'clock के आसपास आता है, तो हाँ, भी जो भी है, उसके मतलब वो दिन आप अवॉइड अवॉइड करना है। करोगे उस दिन पे। ओके, आप उस न्यूज को निकल जाने दोगे, उस न्यूज के निकल जाने के बाद अगले दिन ट्रेड कर लेना, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूँ आपको रिगार्डिंग ये जो डेटा रिलीज और ये सब होता है ना, इन चीज को लेके होगा क्या कि ये जितने भी गवर्नमेंट के डेटा आते हैं ना, अब मान लो ये आरबीआई पॉलिसी है फॉर एग्जांपल, अब मान लीजिए आरबीआई पॉलिसी आने वाली है अगले हफ्ते, तो होगा क्या, इस हफ्ते से जितने भी प्राइवेट सेक्टर वाले बैंक है ना, उनके या तो लो टूटने लगेंगे या फिर उसके हाई टूटने लगेंगे, ठीक है। हाई टूटने का मतलब क्या होता है? ऊपर जा रहा है, करेक्ट।
लो टूटने का मतलब है नीचे जाना है, ठीक है। तो पॉलिसी का रिजल्ट आने के एक हफ्ता पहले ही पीएसयू के जो स्टॉक्स होते हैं वो आपको इंडिकेट कर देते हैं कि होने क्या वाला है, ठीक है, कि चीजें ऊपर जाने वाली है या चीजें नीचे जाने वाली है, ठीक है। और उसी तरह से जब जो प्राइवेट सेक्टर का डेटा होता है, ठीक है, अब जैसे मान लीजिए बहुत अच्छा उदाहरण है ओपेक। ओपेक की मीटिंग होने वाली थी, राइट। एक हफ्ता पहले से ही रिलायंस हाई तोड़ रहा था या लो तोड़ रहा था? हाई तोड़ रहा था, राइट। तो इसका मतलब क्या था, ऊपर जाना चाहता है। ठीक है, तो ऐसा ये बिहेवियर दिखेगा आपको, ठीक है। ये जितने गवर्नमेंट के डेटा होंगे उसमें पीएसयू सेक्टर के स्टॉक्स आपको बताएंगे ऐसा, ओके। और जितने प्राइवेट वाले डेटा अगर कोई होता है आने वाला, तो उसमें प्राइवेट सेक्टर के जो स्टॉक्स होंगे उस स्पेसिफिक सेक्टर के वो बताएंगे आपको, ठीक है। ये मार्केट का फैक्ट है, ऐसे ही होता है, मतलब मैं तो जब से देख रहा हूँ तब से ऐसा ही हो रहा है। राइट फ्रेंड्स? एनी अदर क्वेश्चन? ओके, कार्तिक आप पूछ रहे थे कुछ? सर एक पीएनबी का चार्ट दिख रहा था 5 मिनट्स। पीएनबी का? हाँ, ये कल का सर 5 मिनट। अच्छा एक बात बताओ, ये बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक इंडेक्स में थे ना? हाँ, एक जमाने में थे सर। एक जमाना नहीं, कुछ दिन पहले ही थे। साल भर पहले की बात कर रहा हूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा, राइट। I mean, I remember they were part of the index, but I was not sure about the date. हाँ, अबाउट अ ईयर बैक बैंक ऑफ बड़ौदा यूज्ड टू बी देयर, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा को निकाला इंडेक्स से, क्या हुआ बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ? दोनों पीटे हैं सर। दोनों पिटे। ऐसे ही होता है, इंडेक्स से जैसे ही निकलेंगे ये इसमें इन्वेस्टर एग्जिट करने लगेगा, और जो भी जिसकी भी न्यूज आएगी इंडेक्स के अंदर आने की, जैसे बजाज फिनसर्व ऐड हुआ, फाइनेंस ऐड हुआ, अभी नया नया जो हुआ सब, ठीक है, आप देख लो कहाँ चले गए। टाइटन हुआ, टाइटन कहाँ चला गया? भेल निकला सर, टाटा पावर निकला, ये सब पिट गए। पिटे हैं आज। हाँ तो ऐसा ही होता है, दिस इज हाउ द मार्केट्स वर्क। अब बताओ पंजाब नेशनल सर, बैंक। कल के डेट का 21 का फर्स्ट कैंडल वॉल्यूम ओके, was taken off by a bigger volume here. तो शॉर्ट बना है, रेड है ना, तो ये शॉर्ट बना है। So if we have to go long, we have to go long above the high of this candle. हाँ 10:30 है ना ये, हाँ इसके ऊपर। अब ये इस पे बिग नहीं है, इस वाले पे, तो आप या तो इस पे जाओगे मोस्ट लाइकली, या तो आप इस पे जाओगे या फिर आप इस वाले पे जाओगे, इसके वो ऊपर। मौका दिया ही नहीं। हाँ वो मौका दिया है। So that's how you trade. That's on a 5 minute, right? Not 15 minute. 5 मिनट। And subsequent candle that breaks the volumes of this 10:30 candle, 10:15 candle, that's immaterial, right? First time when it breaks, that's the one we have to see.
हाँ, उसके बाद आपको बस फॉलो करना है उसको। ये पहला ब्रेकआउट ही इम्पोर्टेंट है। तो हमेशा अपना हमारा टारगेट रहेगा इसके, मैंने जो ये लाइंस ड्रॉ करी है उसके ऊपर ही बाय करना है। एंड देन थ्रू द डे वी हैव टू जस्ट वॉच वेदर दैट दोस लेवल्स आर गेटिंग। हाँ, वॉच भी क्या, मैं तो लगा के ऐसे ही इधर उधर घूमने लग जाता हूँ। देखूंगा तो एंग्जाइटी होगी ना। हमें प्राइस अलर्ट लगा के छोड़ के। हाँ, मतलब अगर पोजीशन बन गया है तो स्टॉप लॉस लगाना है, टारगेट लगाना है, उससे ज्यादा क्या। फिर देखेंगे 2-2:30 बजे। देखो, या तो उससे पहले ही आपको टारगेट दे देगा, या फिर उससे पहले ही वो स्टॉप लॉस हो जाएगा, राइट। आपका रोल आएगा जब डे एंड होने वाला है और तब तक ना स्टॉप लॉस हुआ है और ना ही टारगेट हुआ है, तब आपको आपकी जरूरत पड़ेगी उस ट्रेड में। उससे पहले तो आपकी जरूरत भी नहीं है उसमें। और ये मेथड भी हमारा वो आइडेंटिफाइड स्टॉक्स पे ही करना है, राइट। देखो, अभी तक मैंने आपको एक बारी भी नहीं हाँ। बोला है कि मिड कैप के किसी स्टॉक को उठा के ट्रेड करो। ये मैं आपको मेंटरशिप में करूंगा। जो प्राइमरी हम लोग आइडेंटिफाई स्टैक रैंकिंग पे आइडेंटिफाई करते हैं उसी स्टॉक्स पे ये मेथड यूज करना है। उसमें बाय सेल डिसाइड हो जाएगा। हाँ, और उसके बाद फिर टू एंटर द ट्रेड वी हैव टू एंटर इट लाइक दिस, राइट। अब आपके पास जो स्टॉक को पकड़ने के जो तरीके हैं वो बहुत सारे हैं। स्टैक रैंकिंग एक मेथड है। आपको डिलीवरी ब्रेकआउट बताया, आपको बल्क हाँ। ट्रेड, ब्लॉक ट्रेड बताया, आपको हाई वॉलेटाइल स्टॉक बताया है, ठीक है। फिर आपको मैंने वीकली स्टैक रैंक से स्टॉक उठाना बताया, और मंथली, राइट, मंथली से बताया है, और उसको लॉन्ग टर्म ट्रेंड के साथ कोरिलेट करना बताया कि वो कब बुलिश हो गया है, कब बेरिश हो गया है, दोस काइंड ऑफ स्टफ, ठीक है। तो आपको हाना करके 6-7 मेथड आते हैं ऑलरेडी, ठीक है। इसके अलावा आपको प्री ओपन के स्टॉक में से भी आप उठाते हो, ठीक है, विच इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड्स, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, मैंने जैसे आज आपको एक चीज बताया लो वॉलेटाइल स्टॉक को भी आप कैसे ट्रेड कर सकते हो, राइट। वो भी एक मेथड है, ठीक है। एक मेथड मैंने आपको बताया, अगर प्री ओपन में कुछ स्ट्रॉन्ग क्लोज होता है, सॉरी स्ट्रॉन्ग ओपन होता है, स्ट्रॉन्ग क्लोज हो जाता है तो बुलिश। अगर प्री ओपन में कुछ वीक ओपन होता है और वीक क्लोज हो जाता है तो क्या होता है, बेरिश। राइट। सो ओवरऑल दीज 9 to 10 मेथड्स यू नो, राइट। ठीक है। तो आप इनमें से उठा के आप ट्रेड कर सकते हो। स्टैक रैंकिंग या वॉच लिस्ट इज जस्ट वन, ठीक है। और इसको सेग्रीगेट करने का जो अभी स्टार्टिंग में क्योंकि दिक्कत होगा, इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला था कि आप जहां भी बैठते हो आपके सामने जो भी वॉल है या कुछ भी हो, ठीक है, उसमें स्टिकी नोट चिपका लिया करो, क्योंकि वो आसान होता है ना उखाड़ के निकालना या चिपकाना। तो दैट विल हेल्प यू। उस पर स्केच पेन से लिख लिया स्टॉक का नाम, चिपका दिया, सेल की तरफ रखना है या बाई की तरफ रखना है। तो जिस दिन दिखा अरे यार प्री ओपन में मेटल दिख गया है, ठीक है, तो अब मैं देख लेता हूँ कि अच्छा यार मेरे सिलेक्टेड स्टॉक्स कौन से थे, ये थे, इनमें दिख रहा था, ओके फाइन, इनमें से देखता हूँ आज किसको शॉर्ट करना है या लॉन्ग जाना है, ठीक है। ओके गाइस, तो any other question you want to ask me? So how do we identify the high volatile stocks? Like there are 50 stocks, so do we have to check it each and every stock manually, like which one is opening gap up or gap down? नहीं, आप रिपोर्ट पे चेक कर सकते हो। आप सिंपल 2 दिन का उठा लो रिपोर्ट, ठीक है, कल का उठा लिया, आज का उठा लिया, ठीक है, उनको आजू बाजू रख लिया। अगर मान लीजिए आज का लो,
इज हायर देन द हाई ऑफ यस्टरडे, तो इसका मतलब गैप अप हुआ है। सिंपल एक फार्मूला लगा लिया ना उसमें, ठीक है। और अगर आज का हाई इज लोअर देन द लो ऑफ यस्टरडे, तो उसमें गैप डाउन हुआ है, मतलब हाई वॉलेटाइल गैप डाउन साइड पे। ओके, तो आप ऐसे चेक कर लो। सॉरी, ठीक है सर, ठीक है। ग्रेट, फाइन, सो विल मीट टुमारो मॉर्निंग देन, ठीक है। ठीक है, और अगर आपका कुछ भी क्वेश्चन वगैरह हो तो आप देख लीजिएगा, मैं सब बता दूंगा कल, कोई इशू नहीं है। 11, ठीक है। और आप को यही वाला लिंक यूज करना है, द सेम लिंक दैट यू हैव लॉग्ड इन थ्रू, ठीक है। इसी वाले लिंक पे हम लॉग इन करेंगे कल 11 o'clock। ऑलराइट फ्रेंड्स, गुड नाइट, बाय बाय। बाय, गुड नाइट।